Hello students, this is the sixth chapter of class 7th mathematics. Today we will start the next point of this chapter, exterior angle of a triangle and its property. Exterior angle of a triangle and its property. Suppose draw a triangle ABC and produce one of its sides, say BC. This is the side BC and we will produce the side BC to a point D. Then observe the angle ACD. This is the angle ACD. This is the exterior angle of the triangle ABC. Of the triangle ABC. Clearly, angle BCA is an adjacent angle. This is the BCA angle. Angle BCA is an adjacent angle of triangle ACD. ACD is an exterior angle and ACB is adjacent angle. Or to remove interior angle of angle ACD. Now, next is as done earlier, draw a triangle ABC. You can draw a triangle ABC and form an exterior angle ACD. एक ट्रायंगल ABC बनाना है और उसके बाद उसका एक्सटीरियर एंगल ACD आपने यहाँ पर बनाया. नाउ टेक ए प्रोटेक्टर एंड मेजर एंगल ACD, A and B, एंगल ACD, A and B सभी को आपको मेजर करना है. फाइंड द सम एंगल A एंड एंगल B. एंगल A और एंगल B का सम आपने करके देखना है एंड कंपेयर इट विद द मेजर ऑफ एंगल ACD. सपोज एंगल A इज 50 एंड एंगल B इज 30. 50 plus 30 is 80. So that angle ACD will be 80 degree. Find the sum angle A and B and compare it with the measure of angle ACD. Do you observe that ACD is equal to the sum of A and B? If there is an error in measurement, अगर आप मेजरमेंट करने में कोई गलती करते हैं तब एंगल A और B का सम एंगल ACD के इक्वल नहीं आएगा. और अगर आप बिल्कुल सही से मेज़र करते हैं तो एंगल A और एंगल B का सम एंगल ACD के इक्वल आएगा. This shows that exterior angle of a triangle, exterior angle, suppose this is a triangle and this is an exterior angle. This is the adjacent angle of this exterior angle and this is angle A, this is angle B and this is angle ACD. In this triangle, BC side is produced to a point D and angle ACD, this angle is an exterior angle and this will equal to the sum of two interior opposite angle, that is A and B. So that angle A plus angle B is equal to angle A, C and D. It shows that the sum of interior opposite angle is equal to the exterior angle, or you can say the exterior angle of a triangle is always equal to the sum of interior opposite angle. This can be proved simply by measuring these two angles A and B. Suppose this is 30 degree and this is 20 degree, so that this angle will be 50 degree. If this is 30, this is 20, then this will be 50 degree if you measure correctly and clearly. Now, next point is, this is again the same point. Then exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle. This can also be proved by in this form. Suppose there is a triangle ABC and ACD is an exterior angle.
अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो हम सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल लिया हमने, अंदर के दो एंगल ए और बी का हमने नंबर दे दिया एंगल 1 एंड एंगल 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ई सी लाइन, दिस इज ई सी लाइन या सी ई लाइन, इसको हम ए बी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। The line is CE parallel to AC, or you can say BA parallel to CE। अगर ये लाइन CE लाइन AB के पैरेलल होगी तो ऑब्वियसली एंगल A और एंगल X ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगी, क्योंकि ये जो लाइन AC है, ये जो लाइन AC है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी दो पैरेलल लाइन के लिए। तो एंगल 1 is always equal to angle x. Angle x is angle 1, or you can say angle A is equal to angle x, or angle 1 is equal to angle x. Second reason, angle 2 is equal to angle y because of corresponding angle. So because AP parallel to CE, so that angle 2 is equal to angle y, क्योंकि AB लाइन CE के पैरेलल हमने ड्रॉ की है by construction, it is by construction, so that angle 2 is always equal to angle y because of corresponding angle, therefore corresponding angle should be equal। और इसके लिए क्या रीज़न था, alternate इंटीरियर एंगल, इसके लिए रीज़न है corresponding एंगल। अब हम क्या करते हैं, 1 + 2 को प्लस करते हैं, इस एंगल 1 और 2 ए और बी में लेफ्ट है, ये एक इक्वेशन मान लीजिए, दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, इनको दोनों को हम सम करते हैं। इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर सी पॉइंट, 1 + 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 1 + 2 मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी, और एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, एक्स और वाई को हम लिख सकते हैं ए सी डी, सो दैट एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू ए सी डी, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू ए सी डी। This proves that the exterior angle of a triangle is always equal to the sum of interior opposite angle. This proves our property that exterior angle is always equal to the sum of interior opposite angle. Now take some examples, think, discuss and write. First point is exterior angle can be formed फॉर ए ट्राइंगल इन मैनी वेज। देखिए आप यहाँ पर 3 फिगर देख रहे हैं, 1 2 3। एक में इस साइड को आगे एक्सटेंड किया है तो एक्सटीरियर एंगल ये बन जाएगा। एक ट्राइंगल में इस साइड को आगे बढ़ाया है तो एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। एक इस तीसरे ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में इस साइड को आगे बढ़ाया है तो एक्सटीरियर एंगल आपका ये बनेगा। तो तीनों वर्टिसेस से हम एक्सटीरियर एंगल साइड को आगे बढ़ाकर बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल? नो, बिकॉज ऑफ द all sides are not equal in the case of a triangle. Here is an स्केलेन ट्राइंगल, ऑल द 3 ट्राइंगल्स आर स्केलेन ट्राइंगल। तो बाहर के जो भी एंगल बनेंगे वो तीनों इनके इक्वल नहीं होंगे क्योंकि साइड्स अलग अलग हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसमें ये पूछा गया है तीसरे पॉइंट में कि आप एक्सटीरियर एंगल और पास वाले एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके साथ में एडजेसेंट एंगल है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। देखिए यहाँ पर भी लीनियर पेयर है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। किस एंगल का? एक एक्सटीरियर एंगल अगर हम ले रहे हैं और उसके साथ वाला एडजेसेंट एंगल। तो इसमें तीसरे पॉइंट में पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स एडजेसेंट एंगल इंटीरियर एंगल्स। सो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों का वो
बनेगा 180, दैट विल बी ए लीनियर पेयर। तो सेकंड पॉइंट हो गया, इसका थर्ड पॉइंट हो गया, ये मैंने आपका यहाँ पर कवर कर दिया है। अब आगे चलते हैं, देखिए ट्राई दीज आप देख सकते हैं दिए हुए हैं यहाँ पर। इसमें पहला पॉइंट है ट्राई दीज में फर्स्ट पॉइंट है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ऑफ 25, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल 70 दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है एक 25, दूसरे एंगल को मान लीजिए सपोज x, तो x प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 70। एज यू नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो दैट x इज इक्वल टू 70 माइनस 25, x इज इक्वल टू 70 माइनस 25, that is 45. Now the exercise 6.2, इसके अभी दोनों पॉइंट्स और भी क्लियर कर देते हैं, बाकी दो पॉइंट्स भी हैं इस ट्राई दीज में। मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया आपको कि अगर बाहर एक्सटीरियर एंगल आपको 70 दिया हुआ है किसी ट्राइंगल में और अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स में से एक एंगल 25 है, तो व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ सेकंड एंगल और अदर एंगल। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 70, दैट इज x इज इक्वल टू 45। नाउ द सेकंड पॉइंट, इसमें भी देख दो पॉइंट और हैं। सेकंड पॉइंट, द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 60 एंड 80। अगर किसी ट्रायंगल में टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 60 एंड 80, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर आप आसानी से कर सकते हैं, दोनों इंटीरियर एंगल आपको दिए हुए हैं, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 60 एंड 80। तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है 60 और 80 का सम कर देना है, 80 प्लस 60 140, तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपका आ जाएगा 140। थर्ड पॉइंट है इज समथिंग रॉन्ग, थर्ड पॉइंट इज समथिंग रॉन्ग इन द डायग्राम 6.12, दिस इज द डायग्राम 6.12, कमेंट। इस पर आपको बताना है कि क्या कुछ इसमें गलत है। ये जो एक यहाँ डायग्राम बना हुआ है इसमें आपको क्या गलत लग रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं 50 प्लस एंड 50, तो 50 और 50 का सम होगा, कितना होगा 50 और 50 का सम 100। लेकिन बाहर जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50, जबकि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर जो एंगल दिया है वो कितना होना चाहिए 100। तो इसमें ये जो हमारा अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया। तो इसीलिए इस पॉइंट थर्ड में क्या गलती हमको मिल रही है कि जो एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं 50 प्लस 50, उन दोनों का सम 60 है और बाहर इन्होंने 50 लिखा है, जो कि गलत है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 100। ओके, नाउ एक्सरसाइज 6.2, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको यहीं पर ये सॉल्व करके बता देता हूँ, आप इन्हें अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x की वैल्यू आपको बतानी है। x कहाँ पर है, आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, जो फर्स्ट पार्ट में आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें x एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों का आप सम कर लीजिए, वो x की वैल्यू हो जाएगी 70 प्लस 50 120। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपका आंसर आ गया 120। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में x फिर से एक एक्सटीरियर एंगल है और अंदर दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं 65 एंड 45। 65 और 45 को प्लस कर दीजिए, तो ये आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ गया 110। 65 प्लस 45 110। पार्ट थर्ड में देखिए, अब आप पार्ट थर्ड में भी
एक्स किस फॉर्म में है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो 40 + 30, इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 70। अब इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से आप कर लेंगे। ये पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा रफली बता देता हूँ। इसमें एक्स का आंसर हो जाएगा 60 + 60 120। यहाँ एक्स का आंसर हो जाएगा x = 50 + 50 100। और यहाँ x का आंसर हो जाएगा 60 + 30 90। ठीक है, आप इनको अपनी कॉपी में कर लेंगे अच्छे से। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी एक्सरसाइज जो चल रही है इसका क्वेश्चन 2 देखिए। इस क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 में ये डिफरेंस है कि क्वेश्चन फर्स्ट में अंदर के इंटीरियर एंगल दोनों आपको दिए हुए थे और बाहर के एंगल आपसे पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। क्या उल्टा कर दिया गया है, यहाँ आपको एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी दे दिया है। जैसे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे दिया 115 और अंदर के दोनों एंगल, एक 50 है और एक x है। x को छोड़ दिया गया, ये आपको नहीं बताया गया कि क्या होगा इसमें, तो यही आपसे पूछ लिया गया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे x + 50 = 115। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं। क्या कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल = द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसमें क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में दो इंटीरियर एंगल्स हैं, उसमें से एक को छोड़ दिया गया और एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल को कंप्लीट कर दिया गया। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे आप, x = 115 - 50 115 - 50। तो 115 में से आप 50 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 65। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये 2nd पार्ट है, इसमें भी मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। इसमें आप करेंगे x + 70 = 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 - 70 = 30। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। इस वाले 3rd पार्ट में देखिए, 3rd पार्ट में आपको क्या करना है, 3rd पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे। ये आपको दिया है 90 डिग्री, कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो 90 + x, या आप लिख सकते हैं x + 90 = कितना लिखेंगे आप, 125। अगले स्टेप में x = 125 - 90, 125 में से 90 माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला पार्ट भी। इसमें आप लिखेंगे x + 60 = 120। तो x = हो जाएगा 120 - 60, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 60। इस वाले पार्ट में देखिए, आप लिखेंगे x + 30 = 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 - 30 दैट इज़ 50। इस 3rd पार्ट में, 6th पार्ट में आप क्या करेंगे, x + 35 = 75। 75 में से 35 को माइनस कर देंगे, आपका x आ जाएगा। इस क्वेश्चन के सभी 6 पार्ट्स में हमारा वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो भी हम पढ़ कर आए हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल is always equal to the sum of interior opposite angle. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इफ वी टेक ए ट्रायंगल, सपोज ABC, what is not written here, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं कि ABC का सम या 1, 2, 3 एंगल का सम कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और उस पर एक किसी भी शेप का ट्रायंगल बना लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इस पीस को काट लेंगे, इस पीस को काट लेंगे और इस पीस को काट लेंगे और इन तीनों पीस को ऐसे जोड़ देंगे। तो आप अच्छे से देखेंगे कि 1, 2, 3 तीनों कॉर्नर मिलकर
एक पूरा 180 का एंगल बना रहे हैं। द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स इज ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। या आप ये कह सकते हैं कि एंगल, ये तीनों कॉर्नर इस ट्रायंगल के मिलकर पूरा एक 180 डिग्री का कंप्लीट कर रहे हैं 180 डिग्री को, या यूँ कह सकते हैं कि लीनियर पेयर कंप्लीट कर रहे हैं। सो दैट द सम ऑफ थ्री वर्टिसेस या सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कहाँ से आया 180 डिग्री? हमने इन तीनों कॉर्नर को, इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर को हमने काटा और काटने के बाद उनको इस तरह से एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि वो तीनों एक लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, तीनों एक लाइन बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक लाइन पर बने हुए 2, 3, 4, 5 जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है, सब लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 6.3 है। 6.3 एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें कि तीनों एंगल का सम 180 अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो तीनों एंगल का सम 180 है। हमें देखिए आप इस पहले वाले फिगर में एंगल बी कंप्लीट है, एंगल सी कंप्लीट है, लेकिन एंगल ए को इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया है और वहाँ लिख दिया गया है एक्स, और आपसे बोला गया है कि इस एक्स की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे? एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना लिखें बताइए? आपको लिखना पड़ेगा 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? एक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 180। अगला स्टेप क्या होगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो आपका आंसर आ जाएगा 70। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 70 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने हैं। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है और हम इसे प्रूफ भी करके आए हैं कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो दैट जो आपका फर्स्ट फिगर है इसमें दो एंगल कंप्लीट हैं, बी और सी, लेकिन ए को इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया है, वहाँ लिख दिया गया है एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि ऊपर जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स। अननोन एक्स का मतलब है जो एक्स इनकम्प्लीट है उसको बताना है आपको। तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? वही तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ये वाली लाइन। दूसरी लाइन एक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 180, देन द आंसर इज 70 डिग्री। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? एक्स प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ये 90 का साइन होता है, आप जानते ही अच्छे से। राइट एंगल ट्रायंगल को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये सब, आप 6th क्लास में भी पढ़ कर आए हैं। तो 90 प्लस 30 120, 120 को 180 में से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू इस केस में आ जाएगी 60। तीसरा क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें 110 और 30 दोनों को सम कर लेंगे। तो 110 और 30 दैट इज़ 140, और तीसरा एंगल इसमें प्लस करेंगे x, तो x प्लस 110 प्लस 1 प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 140 इज इक्वल टू कितने के होगा? 180। कितने के इक्वल होगा? 180। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे 140 को, तो इसका आंसर इस वाले केस में आ जाएगा 40। इसी तरह से आपके ये नीचे तीनों पार्ट्स हैं, इन्हें आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ इसमें। देखिए, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, तो इस क्वेश्चन में आप करेंगे x प्लस x, क्योंकि इसमें दो अननोन हैं, दो x हैं तो दैट मीन्स टू अननोन्स। ठीक है, प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे अगला स्टेप? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। कितना आंसर आ जाएगा? 130। और 130 आंसर नहीं होगा, वो तो 2x की वैल्यू होगी। अभी आपको x की वैल्यू बतानी है, तो 130/2 करेंगे आप, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, इधर 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड में
डिवाइड की फॉर्म में आएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 65। कितना आंसर आ जाएगा 65। तो x इज इक्वल टू 65। इसी तरह से अब हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं तीनों एंगल इक्वल है इसमें। तो एक प्रॉपर्टी है कि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स अपोजिट टू इट। खैर वो यहाँ पर यहाँ नहीं है वो इस एप्लीकेबल, लेकिन ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह आप देख रहे होंगे, लग रहा है। तो इसमें तीनों ही एंगल्स अननोन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 180, दैट इज 3x इज इक्वल टू 180। नाउ x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट मीन्स 60। तो ईच एंगल इज x, सो दैट क्योंकि आपको मालूम है हर एक एंगल सेम मेजरमेंट का यहाँ पर दिया गया है x, इसलिए इसका आंसर भी तीनों एंगल का सेम आना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह से है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। दिस इज 90 इज इक्वल टू 180। x प्लस 2x मीन्स 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90। ये आपके पास आ गया3x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से इससे आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ चुका था 3x इज इक्वल टू 90, सो दैट x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, सो दैट 3 3 जा 9 एंड 0, 30 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री और यहाँ पर वैल्यू हो गई 60 डिग्री। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, देखिए इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज है आपकी 6.3 के मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ आज, पूरी तरह कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए इसमें ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और आपसे पूछा गया है x और y अननोन बताइए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन x एंड y। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एप्लीकेबल कर सकते हैं y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, बिकॉज y और 120 जो आपस में मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ऑफ इसमें यहाँ पर आप रीज़न लिखेंगे, क्या रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर। तो यहाँ से y आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने सामने अगर आप किताब रख लेंगे, अगर आपने खरीद तो ली ही होगी अब तक, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन मालूम होते रहेंगे और समझ में आते रहेंगे। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू देखना चाहेंगे कैसे होगी। देखिए y के केस में तो प्रॉपर्टी लगी है लीनियर पेयर, लेकिन x के केस में प्रॉपर्टी लीनियर पेयर नहीं लगेगी। x के केस में प्रॉपर्टी लगेगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, x प्लस 50 इज इक्वल टू 120। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा ये 70। ठीक है, तो मैंने इसको क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। ठीक है, इसमें पूरे क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही हैं, एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक लीनियर पेयर। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए। लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 होता है, दोनों अपोजिट रेज होती हैं और 2 या 3 एंगल भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा
जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में y और AT अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रॉस बन रहा है। क्रॉस का मतलब है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y का तो आप सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 80। y का आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 80 आ गया आपका सीधे से y का आंसर। और अब आपको x बताना है, तो x का आंसर कैसे करेंगे, y आपको पहले से मिल चुका है, y कितना मिल चुका है 80। अब आप इसमें x निकालने के लिए इन तीनों एंगल में क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, y आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आ चुका y आपके पास 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x प्लस 80 प्लस 50 यानी कि 130 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। तो y तो आपका पहले ही आ गया था। इस फिगर में दो ही अननोन थे, एक x और एक y आप पहले ही निकाल चुके थे, जो कि x 80 डिग्री आ गया था और x की वैल्यू आपकी आ गई 50 डिग्री। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी, एक तो लगी आपकी प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक प्रॉपर्टी लग गई सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपका ले रहा हूँ, ये देखिए, इसमें भी दो अननोन दिए हैं x और y। आप जानते ही हैं हमें अननोन x और y मालूम करने हैं। तो y निकालने के लिए तो आप फिर से वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे। आप रीजन में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो y इज इक्वल y प्लस 60 प्लस 50 हो गया 110 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। तो आपका इस क्वेश्चन में y आ गया 70 डिग्री। अब जब आपका y 70 डिग्री आ गया तो x निकालने के लिए कोई मुश्किल नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई, अगर हम x प्लस वाई का सम करते हैं तो क्या होगा 180। क्यों होगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ध्यान से सुन लीजिए, लीनियर पेयर आपको रीजन लिखना है। अब y हमारे पास कितना आ चुका था पहले से 70, तो y की वैल्यू 70 रख दीजिए इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। x निकालने के लिए आप दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये x है, आप देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो या तो x प्लस वाई यूज़ कर लीजिए जैसा कि मैंने किया है, या फिर x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 कर लीजिए, सीधे एकदम आपको 110 मिल जाएगा। तब आप रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, या एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, फॉर दिस वीडियो थैंक यू।